बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करेंगे. दिस टाइम वी विल हैव अनदर सेट ऑफ how many words? 100 words. And the first word is Bismillah, in the name of Allah. So I can say that in the name of Allah, I start my speech. Alhamdulillah, praise be to Allah. Alhamdulillah, I'm feeling well. Or I can say, I'm feeling well today, praise be to Allah. So these are the words that you can use in your daily life, and you can use them as it is, no problem. You can use them as it is also, because some words do not have an equivalent. सब हर वर्ड की इक्विवेलेंट आपको तर्जुमा नहीं मिल पाता, तो हम एज इट इज भी यूज कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह. लेकिन फिर भी ये है कि आप अगर इसका चाहते हैं इंग्लिश जानना, तो ये दी हुई है. Subhan Allah, glory be to Allah. Subhan Allah, the sky looks beautiful. Glory be to Allah. Glory means all the glories be to Allah. Next is Allahu Akbar. Allah is the greatest. The adhan begins with Allahu Akbar. So when you are, जैसे हम किसी किसी को हैबिट होती है बोलने की अल्लाहु अकबर बीच बीच में, तो हम बोल सकते हैं अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट. नेक्स्ट इज अस्तगफिरुल्लाह. I seek Allah's forgiveness. I said astaghfirullah after my mistake. So when you make a mistake, instead of saying astaghfirullah, you can also say I seek Allah's forgiveness. Next is inshallah, if Allah wills. I will visit the mosque tomorrow if Allah wills. Okay? Mashallah, what Allah has willed. Mashallah, your recitation is beautiful. Jazakallah means may Allah reward you. Jazakallah for your help, or may Allah reward you whenever we are thankful to anyone. Barakallahu feek. May Allah bless you for your kindness. Ameen means, oh Allah, accept it. We all say Ameen, or we all said Ameen after the dua. Salam, peace. Islam teaches peace. Assalamu alaikum. Peace be upon you. Wa alaikum assalam. I replied with Wa alaikum assalam. That is, peace be upon you too. Then there is another word, khair. इस चीज में खैर है ना, तो हम कह सकते हैं that there is a khair in every delay. There is a khair in every delay. So instead of using this word as khair, I can use the word there is a goodness in every delay. Then there is a word shar. अल्लाह हमें इसके शर से बचाए. तो शर होता है evil. तो अल्लाह may Allah protect us from the evil of this thing. Or in another sentences, we seek refuge from evil. हलाल, कोई चीज हलाल है यानी permissible है. Muslims eat halal food, or Muslims eat only permissible food. Or we can say that फलाना चीज permissible है. ठीक है. हराम हो गया forbidden. Forbidden मतलब बिल्कुल मना की हुई चीज. तो फॉरबिडन हम उसके लिए भी यूज करते हैं जो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को मना किया गया था कि ये फ्रूट ना आप लें, खाएं ना जन्नत में. तो उसको भी हम फॉरबिडन कहते हैं, फॉरबिडन फ्रूट. सुन्नत. सुन्नत का मीनिंग है रिकमेंडेड प्रैक्टिस. ठीक है. ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हमने नियर ट्रांसलेशन किया है. ये एज इट इज हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल एज इट इज है, लेकिन क्लोज ट्रांसलेशन है. recommended practice using miswak is a recommended practice. फर्ज हो गया obligation. ये मेरा obligation है, नमाज पढ़ना obligation है. The 5 daily prayers are obligations to us, on us, or obligatory. वाजिब, necessary duty. कोई चीज जो नेसेसरी है और ड्यूटी है लेकिन है सुन्नत है थोड़ी सी, तो वित्र prayer is necessary according to some scholars. Next is mustahab, something which is recommended act,
Smiling is a recommended act. Smiling is a sunnah as well. मकरूह हो जाना कोई चीज disliked act. तो wasting water is disliked. Mubah, permissible act. Traveling is permissible, something which is permissible. Permissible होना और अल्लाह मकरूह भी हो सकती है कोई चीज परमिसिबल है लेकिन अल्लाह को डिसलाइक है, जैसे कि अगर हम तलाक की बात करें तो परमिसिबल है लेकिन इट इज डिसलाइक्ड बाय अल्लाह। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं दैट डिवोर्स डिवोर्स इज परमिसिबल बट इट इज डिसलाइक्ड बाय अल्लाह। एक सेंटेंस है तहज्जुद। तहज्जुद वर्ड है द नाइट प्रेयर के लिए, ही वोक अप फॉर द नाइट प्रेयर। नाइट प्रेयर ही कहेंगे उसको। तरावी, रमजान प्रेयर जो होती है रात में, मुस्लिम्स प्रे तरावी इन रमजान। सहरी, प्री डॉन मील। प्री डॉन, डॉन माने होता है सुबह, तो सुबह से होने से पहले जो मील करनी जाती है। वी एट सहरी बिफोर फजर। इफ्तार करना, ब्रेकिंग द फास्ट। डेट्स आर कॉमनली ईटन टू ब्रेक द फास्ट। इस तरीके से हम बता सकते हैं। ईद, ईद फेस्टिवल, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। ईद का एज सच कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा। मुस्लिम सेलिब्रेट ईद विद ग्रेटिट्यूड। कुर्बानी, sacrifice, we perform sacrifice during Eid al-Adha. Udhiya, animal sacrifice, the sacrifice is distributed among people. तो miswak, toothstick, the Prophet sallallahu alaihi wasallam loved using the toothstick. Then there is tasbih। तस्बीह जो पढ़ते हैं लोग, प्रेयर बीड्स, बीड्स उनको कहते हैं जो मोती होते हैं। माई ग्रैंडफादर यूजेस प्रेयर बीड्स। खुतबा, खुतबा होता है सरमन। फ्राइडे सरमन कहा जाता है। द इमाम डिलीवर्ड द फ्राइडे सरमन। इमाम, इमाम कौन होता है? प्रेयर का लीडर। द इमाम और द प्रेयर लीडर लेड द प्रेयर। मुआजिन, मुआजिन कौन होता है? कॉलर टू प्रेयर, प्रेयर जो अजान देता है। द कॉलर टू प्रेयर गेव द अजान। मुसल्ली, पर्सन प्रेइंग, जो पढ़ रहे हैं मुसल्ले पर वो सब मुसल्ली हैं, और उनको कहेंगे कि एवरी पर्सन प्रेइंग स्टूड इन रोज। सफ यानी कि प्रेयर की रो। द फर्स्ट प्रेयर रो हैज ग्रेट वर्च्यू। अगर आप पहली सफ मिल जाती है, पहली प्रेयर रो मिल जाती है, हम सिंपली रो भी कह सकते हैं, कोई ऐसी आफत नहीं है। देन देयर इज जनाजा। जनाजा मतलब फ्यूनरल प्रेयर। जनाजा पढ़ दिया तो जनाजा मीन्स फ्यूनरल प्रेयर। फ्यूनरल का मतलब होता है डेथ से। वी अटेंडेड अ फ्यूनरल प्रेयर। कब्र, कब्र है ग्रेव। एवरी सोल विल एंटर द ग्रेव। कफन, बरियल श्राउड। अच्छा वर्ड है ये, बरियल श्राउड। श्राउड माने होता है कुछ ओढ़नी किसी तरीके की, तो बरियल यानी दफनाने वाले जो कपड़े होते हैं वो कफन होता है। द डिसीज्ड, डिसीज्ड माने मरा हुआ इंसान जो पास अवे हो गया है। द डिजीज्ड वॉज wrapped in a burial shroud। उसको लपेटा गया एक बरियल श्राउड में। मैयत, डिसीज्ड पर्सन। द डिसीज्ड पर्सन was buried respectfully। Talqeen, final reminder, the scholar recited the final reminder। दुआ मगफिरत, प्रेयर फॉर फॉरगिवनेस। और हम इसको एक चीज और भी बोल देते हैं अक्सर कि प्रेयर फॉर द डिपार्टेड सोल। प्रेयर फॉर द डिपार्टेड, डिपार्टेड मतलब जो चला गया है, हमसे दूर हो गया है, सोल। तो हम ये भी कह सकते हैं दुआ मगफिरत को, प्रेयर फॉर फॉरगिवनेस। वैसे मगफिरत का मतलब फॉरगिवनेस होता है, लेकिन इस दुआ को हम इसलिए करते हैं कि जो सोल हमारे साथ नहीं है इस वक्त, उसको हम मगफिरत की दुआ करें। Then there is a word sawab jariya, continuous reward. Building a well or building a masjid brings continuous reward. Then we have a word yatim, यानी कि orphan। यतीमों का और जो बेवा औरतें हैं उनका ख्याल रखना बहुत जोर दिया गया है इस पर। तो बेवा के लिए आएगा विडोस और यतीम के लिए आएगा ऑर्फन्स। इस्लाम एनकरेजेस केयर फॉर ऑर्फन्स।
मिस्कीन, मिस्कीन माने कि नीडी पर्सन। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लोग कर जाते हैं, मिस्कीन को समझ लेते हैं गरीब आदमी। गरीब बेशक नीडी होगा, लेकिन फिर भी जो उसका सही ट्रांसलेशन है वो नीडी है। मिस्कीन माने नीडी, जिस जरूरतमंद। वी शुड हेल्प द नीडी पीपल। देन फकीर, फकीर होगा पुअर पर्सन। द पुअर पर्सन रिसीव्ड चैरिटी। ठीक है। जालिम, जालिम हो गया ऑपरेसर। मजलूम हो गया ऑपरेस्ड। जिसने ऑपरेस किया वो जालिम। अल्लाह डिसलाइक्स ऑपरेसर्स। एंड मजलूम ऑपरेस्ड पर्सन, अल्लाह सपोर्ट्स द ऑपरेस्ड। Then there is a word adab e guftagu, good speech. Good speech reflects good character. Mashwara. Mashwara means consultation. The family made decisions through consultation. Then there is a word sulah. सुलह करवाना किसी की, रिकंसिलिएशन। अच्छा वर्ड है ये। किसी के बीच सुलह करवाना बहुत अच्छी बात होती है, और हम उसको कहेंगे कि रिकंसाइल करवा दिया हमने, या रिकंसिलिएशन करवा दिया दो लोगों के बीच में। सो वी शुड ऑलवेज, एक सेंटेंस में दोबारा बना देती हूँ, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू रिकंसाइल, ट्राई टू रिकंसाइल आफ्टर एनी आर्ग्यूमेंट और समथिंग। किसी भी आर्ग्यूमेंट के बाद हमें रिकंसाइल करने की कोशिश करनी चाहिए। बिर उल वालिदैन, काइंडनेस टू पेरेंट्स। काइंडनेस टू पेरेंट्स इज हाईली रिवॉर्डेड। वालिदैन के लिए पेरेंट्स, और बिर का मतलब काइंडनेस। सिला रहमी, मेंटेनिंग फैमिली टाइज। फैमिली टाइज को मेंटेन करना बहुत ही जोर दिया गया है इस पर भी, अगेन इन इस्लाम। तो इस्लाम टीचर्स मेंटेनिंग फैमिली टाइज। तो हमें मेंटेन करनी है फैमिली टाइज। फैमिली टाइज का मतलब है कि आपकी टाइज, मतलब रिलेशनशिप्स। हुस्ने हुस्ने जन, पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत ही डिफरेंट वर्ड है ये। पॉजिटिव थिंकिंग, वी शुड हैव पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट अदर्स। सो एजन, बैड सस्पिशन। बैड सस्पिशन हार्म्स रिलेशनशिप। इससे हमें बचना चाहिए कि हम बेकार में किसी के बारे में जब पता ना हो तो हम बस शक के बेसिस पर उससे नफरत करें या उसको गलत समझें। तो बैड सस्पिशन। गिबत का मतलब है बैक बाइटिंग। बैक बाइटिंग इज अ सीरियस सिन। बहुत बुरा सिन है ये, इससे हमें बचना चाहिए बैक बाइटिंग से। बहुतान, स्लैंडर, किसी के आगे नाम के बहुतान लगाना, कोई भी उनको स्लैंडर करना, यानी कि उनको बेइज्जत करना। सो स्लैंडर डिस्ट्रॉयज ट्रस्ट। अच्छा वर्ड है ये। Dira, protective on. A believer should have protective on. Then there is a word, tawazu, humility. Humility raises a person's status. अगर इंसान में humility है तो वो। Then there is this word, sakhawat, charity mindedness. Charity mindedness benefits society. ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब कि ये एक माइंडसेट है, चैरिटी माइंडसेट। कि ऐसा माइंडसेट जो होता है वो सोसाइटी को फायदेमंद पहुंचाता है, फायदेमंद होता है। हुस्न अखलाक, गुड मैनर्स। उस इंसान का हुस्न अखलाक देखकर लोग अट्रैक्ट हो गए इस्लाम में, है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न अखलाक, तो गुड मैनर्स ऑफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एहतराम, यानी कि रेस्पेक्ट करना किसी चीज का। रेस्पेक्टिंग एल्डर्स इज इम्पोर्टेंट। खिदमत खल्क, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। बहुत ही इजी वर्ड है ये, समझ में आ रहे हैं कि किस तरीके से इनकी इंग्लिश बनाई गई है। सर्विस टू ह्यूमैनिटी अर्न्स रिवॉर्ड। मोहब्बत ए रसूल, लव ऑफ द प्रॉफिट। लव ऑफ द प्रॉफिट स्ट्रेंथन्स फेथ। दुरूद भेजना, sending blessings upon the prophet. So we recited blessings upon the prophet. Instead of saying we recited durood, we can say we recited blessings. Salamati, peace and blessings. जब हम सलामती की दुआ करते हैं तो हम चाहते हैं कि उस इंसान को पीस और ब्लेसिंग्स दोनों मिले। We ask for peace and blessings upon him. Then there is a word ashra mubashara, यानी कि 10 जो लोग थे जिनको तो जन्नत की पहले से पहले खबर दे दी गई थी जीते जी।
तो वो लोग 10 लोग थे, तो 10 promised paradise, 10 ऐसे लोग जिनको प्रॉमिस की गई थी पैराडाइज। Our beloved companions, there are 10 promised paradise. There are 10 people who were promised paradise in the lifetime. Then there is a word muhsin. Muhsin matlab doer of good. Allah loves the doers of good. Muttaqi, God conscious person. Person जिसको गॉड की एहसास हो, कॉन्शियस हो, चिंता हो कि गॉड मुझे देख रहा है, गॉड मुझे हमेशा, अल्लाह मुझे हमेशा वॉच कर रहा है, तो गॉड कॉन्शियस पर्सन को कहेंगे मुत्तकी। द गॉड कॉन्शियस पर्सन अवॉइड्स सिन। हाफिज, मेमोराइजर ऑफ कुरान, माय फ्रेंड इज अ मेमोराइजर ऑफ कुरान। Qari, Quran reciter, the reciter has a beautiful voice. Alim, scholar, the scholar answered our questions. Mufti, Islamic jurist, the jurist issued a ruling. Talibul ilm, seeker of knowledge, every seeker of knowledge is honored. Darsgah, place of learning, students gathered in the place of learning. Tafsir, explanation of Quran, I read the explanation of Quran. Fiqh, fiqh के matters जो होते हैं वो Islamic jurisprudence यानी कि rules, he studies Islamic jurisprudence. Fatwa, religious ruling, इसको देखिए कि religious ruling होती है fatwa. The scholar explained the ruling or he gave the religious ruling. Ijma, scholarly consensus, scholars reached a consensus. Qiyas, analogical reasoning. Islamic law sometimes uses analogical reasoning. Hikaya Ambiya, stories of prophets. Children love stories of prophets. Mu'jiza, miracle. The splitting of the sea was a miracle. Miracle जो होता है वो आप देखिए कि कभी भी हम अल्लाह के लिए ये यूज नहीं करते कि अल्लाह ने जादू कर दिया, अल्लाह मैजिक, नो, अल्लाह मिरेकल करता है, मुआजिजा करता है, तो उसके लिए मिरेकल यूज करेंगे। करामा, wonder granted to a saint, Allah grants wonders to whom he wills. Then fitna, fitna trial, wealth can be a trial, ये बहुत यूज्ड वर्ड है, बड़ा यूज होता है ये फितना, फितने में मत पड़ो, ये एक फितना है, औलाद एक फितना है। तो children are also a trial for their parents. So a trial, ट्रायल चल रहा है मतलब किसी का वहां से वर्ड लिया गया है, जैसे कि ट्रायल चल रहा है किसी का, जैसे कि कोई मतलब कोर्ट में चलता है ट्रायल, तो वो भी एक फितना है, इस तरीके से बोलते हैं। बला, टेस्ट, एवरी बिलीवर फेसेस टेस्ट्स। मुसीबत, हार्डशिप, अच्छा वर्ड है ये, मुसीबत आना, हार्डशिप आना। मुसीबत को हम डिफिकल्टी भी कह सकते हैं, लेकिन हार्डशिप बहुत अच्छा वर्ड है। हार्डशिप टीचर्स पेशेंस। आफिया, वेलबींग, आफिया का ये नियर मीनिंग है, आफिया में बहुत कुछ आता है। वी आस्क अल्लाह फॉर वेलबींग। शिफा यानी कि हीलिंग, जैसे फलाना चीज में शिफा है, सो वी कैन से हिजामा हैज शिफा, देयर इज शिफा इन हिजामा। अल्लाह इज द सोर्स ऑफ हीलिंग एंड अल्लाह इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ शिफा। मर्स यानी कि इलनेस, इलनेस कैन इरेज सिंस। तिब नबवी, prophetic medicine, many people study prophetic medicine. Ruqya, Quranic healing, we listen to Quranic healing. Hasad, envy, envy harms the heart. Kibr, arrogance, arrogance prevented many people from accepting truth. बहुत अच्छा word है ये, arrogance. Arrogance was the first sin that was ever done because Shaitan or the Satan was the first one who did this sin. Riya, show off karna, showing off destroys sincerity. Vasvasa, evil whispers. We seek refuge from evil whispers.
ईविल विस्पर्स, विस्पर अपने आप में एक वर्ड है, फुसफुसाहट, लेकिन ईविल बुरी वाली, तो उसको हम वसवसा कहेंगे। शैतान, शैतान के लिए आएगा सेटन। और जिन, जिन के लिए अल्लाह क्रिएटेड जिन एंड ह्यूमंस, जिन के लिए अक्सर एक वर्ड यूज, मतलब आपने इंग्लिश में कहीं कहीं देखा होगा, जिंक्स करके लिख देते हैं, सॉरी फॉर दिस बिग फॉन्ट, जिंक्स करके लिख देते हैं, तो उसको भी जिन ही पढ़ा जाता है, JINN। इबादत गाह, प्लेस ऑफ वर्शिप, द मॉस्क इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। और लास्ट वर्ड मैंने आज का लिया है फज्र, डॉन प्रेयर। जैसे कि हमने प्री डॉन मील पढ़ी थी, ऐसी फज्र, डॉन प्रेयर। आई ऑफर्ड द डॉन प्रेयर एट द मॉस्क। तो ये हमारे 100 वर्ड्स आज आपने लर्न किए, जो कि बहुत ज़्यादा यूजेबल हैं, बहुत यूज होते हैं, और आप उसको कभी भी यूज कर सकते हैं इनको। So I hope you like the video. Please like it, share it with others, and call people to this wonderful channel where you can learn Islamic English or English from the Quran and Islamic perspective. Thank you very much. Jazakallah khair.